नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात उर्स स्पेशल लेकर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 806वें उर्स मुबारक के मौके पर इस वक्त हम यह ख़ास प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और अजमेर शरीफ में आस्ताना आलिया और उसके गिरदोनवाह में हम देखते हैं कि गैर मामूली चहल पहल और गहमा गहमी का आलम है। आस्ताना आलिया बुक़ाए नूर बना हुआ है और इसी मुबारक मौके पर, इसी मुक़द्दस मुबारक लम्हात में हम अपने इस ख़ास प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को मुख्तलिफ़ हस्तियाँ अपने अपने वजूद से रौनक बख्श रही हैं। तो आइए पहले सेगमेंट के लिए हम जिन मेहमानों को आपसे रूबरू करा रहे हैं उनके खुशामदीद आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से कहते हुए सबसे पहले सना आपका इस्तकबाल है और क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका भी पुरतपा खैर मक़दम है। तो आज आपकी तरतीब बता रही है कि क़ारी साहब ज़रूर नात पाक पेश करेंगे और सना के पास यकीनी तौर पर हमदे बारी ताला होगी। तो सना आगाज़ कीजिए हमदे बारी ताला से। हम हमतन गोश हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सब का तू रहनुमा। ए खुदा ये ज़मीं फलक उनसे आगे तलक जितनी दुनिया है सब में तेरी झलक। क्या कहने, ये ज़मीं उनसे आगे तलक जितनी दुनिया है सब में तेरी झलक। सुभान अल्लाह। ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सब का तू रहनुमा। ए खुदा हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ गुल खिले सीने संग से। हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ गुल खिले सीने संग से। ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सब का तू रहनुमा। ए खुदा हर सितारे में आबाद है एक जहां, सा चांद सूरज तेरी रोशनी के अमा। हर सितारे में आबाद है एक जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के अमा। क्या कहने, क्या कहने। ए खुदा
جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکریہ. ایک سحر آفرین کیفیت کے ہم داد دینا بھول گئے. بہت خوب سنا, بہت خوب ماحول بنا دیا. اب قاری صاحب کے پاس چلتے ہیں. بارگاہ رسالت مآب میں آپ ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں. قاری صاحب آغاز کیجیے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے. دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے. ان کے در پر بیٹھ کے آوے, ان کے در پر بیٹھ کے آوے, زمزم پینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے. بے شک. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. اسی سائے میں رب کے آگے, اسی سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. واپس آئے دل نہیں کرتا چھوڑ کے ان کی چوکھٹ کو. واپس آئے دل نہیں کرتا چھوڑ کے ان کی چوکھٹ کو. جان بھی دے دے ان کے در پر, جان بھی دے دے ان کے در پر, دل میں آتا ایسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے. سبحان اللہ. قاری صاحب, ثنا کا اپنا مقام, آپ کا اپنا مرتبہ, دونوں نے مل کر ایک سما باندھ دیا, رنگ جو ہے ہمارے اس بزم کا دوبالا کر دیا. اور ایسے ہی کسی موقع کے لیے اقبال نے کہا ہے
کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بہت 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 شکریہ، جزاکم اللہ۔ تو ناظرین، امید ہے کہ ہمارے ان پیارے مہمانوں کی یہ خوبصورت پرفارمنس آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کچھ اور مہمانوں کو آپ سے متعارف کرانا ہے، اس کے لیے ہمیں لینا پڑے گا ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے صاحب نسبت عالم دین اور معروف اسلامی اسکالر جناب مولانا عبداللہ طارق صاحب کا پرتپا خیر مقدم ہے مولانا صاحب۔ اور تمام ناظرین کی طرف سے ہم استقبال کرنا چاہیں گے معروف دانشور مفکر جناب مولانا جابر القادری صاحب کا۔ ممتاز دانشور ہیں، ممتاز عالم ہیں، آپ کا بھی پرتپا خیر مقدم ہے مولانا صاحب۔ تو ناظرین، آئیے خواجہ حضرت معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ کی حیات، آپ کی تعلیمات کا یہ موقع ہے بیان کرنے کا، ان کا ذکر کرنے کا، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اس کے پس منظر کو واضح کر دیا جائے کہ ہندوستان میں بزرگان دین کی آمد کس طرح ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان دو حیثیتوں سے وارد ہوئے، ایک حکمراں طبقے کی حیثیت سے، بادشاہ وقت کی حیثیت سے، فاتح حکمراں کی حیثیت سے، دوسرے بزرگان دین کی حیثیت سے۔ دو طرح کی حکومتیں نظر آتی ہیں، ایک ظاہری حکومت ہے اور ایک باطنی حکومت ہے۔ ظاہری حکومت کا اقتدار یہاں کی سرزمین پہ تھا، عوام پہ تھا، اور جو باطنی حکومت تھی اس کا سکہ لوگوں کے دلوں پر رائج تھا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین نے نہ صرف یہ کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی، بلکہ یہاں کی سرزمین، یہاں کی ثقافت، سب چیز کو اپنے رنگ میں رنگ لیا اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، ان کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ اور اس زمانے میں جو بادشاہ وقت تھے ان کا اور بزرگان دین کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دوری، کوئی بہت نظر نہیں آتا، کوئی فاصلہ نظر نہیں آتا، کیونکہ بادشاہ وقت بھی جو تھے وہ زہد و تقویٰ کے پیروکار تھے، یعنی اس کے علمبردار تھے، اور جو بزرگان دین تھے ظاہر سی بات ہے وہ بوریہ نشیں تھے، انہیں دنیا سے کیا مطلب۔ لیکن آہستہ آہستہ بادشاہ وقت اور بزرگان دین کے درمیان دوریاں بڑھتی گئیں، دین پر دنیا مقدم ہوتی گئی۔ بزرگان دین نے تو اپنی روایت نہیں بدلی، لیکن بادشاہ وقت کہیں دور جا پڑتے ہیں۔ تو مولانا جابر القادری صاحب سے ہم دریافت کرنا چاہیں گے کہ جو یہ دوریاں نظر آتی ہیں، یہ دوریاں کیوں پیدا ہوئیں اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبلغنا شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ۔ علماء اکرام اور صوفیہ اکرام، یہ میں تھوڑا سا ہلکا سا دو لفظوں میں پس منظر واضح کر دوں کہ ایک قوم برہمہ تھی جو دین ابراہیمی پر مسلط تھی۔ بعد میں ان حضرات نے 3 جگہ کوچ کیا، چین کی طرف، افغانستان کی طرف، اور اس ٹائم ہندوستان بہت کم علم میں جانا جاتا تھا تو کچھ قومیں ادھر بھی آئیں، لیکن اس ٹائم ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی کو لوگ چاہنے والے تھے۔ اس ٹائپ کے ویدوں میں آتا برہمانہ، تو برہمن ابراہیم اور یہ اسی کی ملت کے دائدے جو توحید کے قائل تھے۔ دھیرے دھیرے جو سلطنتیں جو ہندوستان میں جب وہ قوم آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کس کا مذہب پکارا جائے، تو حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب سے پہلا مذہب اگر دنیا کا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ لوگ آتے چلے گئے مذہب کو اپنی اپنی اعتبار سے اس عمل پیرا ہوتے چلے گئے، لیکن اصل تھی توحید۔ توحید کے اوپر لوگوں نے کیا، آگے آگے بڑھتے حالات بڑھے، حالات بنے تو لوگ مجسموں کی طرف بھی آنے لگے، مورتیوں کی ہونے لگے۔ دنیا کا سب سے پہلا اگر کوئی مورتی کا پجار تھا تو وہ ابن سبا کے نام سے تاریخ میں آتا ہے، اس نے دنیا میں سب سے پہلے مورتی کی پوجا کی۔ میرا عقص یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے علم ظاہری، ایک ہوتا ہے علم باطنی۔ علم ظاہر قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم کلام، اصول فقہ، اصول تدریس سے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے علم ظاہر۔ علم ظاہر تو میرے دوستو وہ عجیب چیز ہے کہ ہزاروں سال مشقت بے پناہ کرنے کے بعد، ہزاروں سال استاذ کے سامنے زانو ادب طے کرنے کے بعد وہ جواہر، وہ اسرار، وہ خزائن اور عرفان حاصل نہیں ہوتے جو ایک بزرگ کی نگاہ کرم سے سینے کو پھاڑ کے حاصل ہو جاتے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، ہم اس طرف بھی آئیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر لیکن یہاں جو آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گی وہ اس موضوع پر اپنے سوال کی طرف ہے۔ مولانا عبداللہ طارق
साहब, जैसे कि भी मौलाना साहब ने भी बहुत तफसील से बताया, फिर अपने सवाल की तरफ आएंगे कि हम देखते हैं कि शमसुद्दीन अल्तुतमिश और ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों के दरमियान दिली भी मुनासबत थी, ज़हनी मुनासबत थी और रूहानी मुनासबत भी थी। तो जब ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है तो बड़ी अजीब सी वसीयत वो छोड़ जाते हैं कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसने उम्र भर कभी ज़िना ना किया हो, जिसकी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो और जिसने कभी असर की सुन्नतें क़ज़ा ना की हों। अब तदफीन का मरहला दरपेश है, अगली सफ़ों से जो शख्स बाहर निकलते हैं वो बादशाह वक्त है, शमसुद्दीन अल्तुतमिश हैं, और लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या ऐसा भी बादशाह हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ये क़ुर्ब था जो आहिस्ता आहिस्ता बोध में बदलता चला गया, दूरियां आती गई, और एक वक्त वो भी आता है जब दुनिया मुकद्दम आ जाती है बादशाह वक्त पर। तो ऐसी सूरत में जो दूरियां आई, इसने दोनों को कितना दूर कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, देखिए, बुनियादी चीज़ देखने की जो है वो ये है कि हमने अपनी नकेल किसके हाथ में दे रखी है। शमसुद्दीन अल्तुतमिश और हज़रत कुतुब साहब, उन दोनों की नकेल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी, अल्लाह के हाथ में थी, इसलिए उनमें कोई टकराव नहीं था। तो असल जंग जो है बादशाहत और फ़कीरी में नहीं है, असल जंग उस फ़िक्र में है जो बदल जाती है। बादशाहों के सामने या बहुत सारे बादशाहों के सामने हुकूमत चलाना और हुकूमत की मसलहतों को देखना मुक़द्दम होता है। औलिया किराम के यहाँ अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को देखना और उनके तकाज़ों को देखना मुक़द्दम होता है। इन तकाज़ों में कभी कभी टकराव पैदा हो जाता है। यहाँ चूँकि एक ही चीज़ है दोनों के सामने, इसलिए कोई टकराव नहीं है। शमसुद्दीन अल्तुतमिश वो बादशाह बाद में है, असल में एक साहिब ईमान, एक शरीफ इंसान, एक शरीयत का पाबंद इंसान है, इसलिए उनके इनके दरमियान कोई दूरी नहीं थी। बिल्कुल, हम देखते हैं कि दूरियां बाद में बढ़ती हैं और मुल्क को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक दस्तूर की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ जो तबका उभर कर आता है वो उलमा का तबका होता है। अब उलमा और बुजुर्गान दीन, इन दोनों के दरमियान नज़रियाती सतह पर इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब हम तसव्वुफ़ की बात करते हैं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में सिलसिला चिश्तिया तसव्वुफ़ के जो हैं वो मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं अलग अलग, लेकिन सबसे पुराना जो फ़िरक़ा है वो सिलसिला चिश्तिया है। उसके बानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो जब आप हिंदुस्तान आए, किस तरह से सिलसिले की बुनियाद पड़ी और ये सिलसिला कहाँ से कहाँ तक पहुँचा? जब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए और ये हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आने की बिशारत, खुशखबरी बज़ाते खुद अज़्म जो है गरीब नवाज़ का नहीं था। बेशक बेशक ये गरीब नवाज़ का नहीं था, बल्कि जब मदीने शरीफ जो मिज़ाब रहमत का परनाला है वहाँ पर खड़े होकर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आपके मुर्शिद कामिल हैं। मैं एक चीज़ और बताऊँ, एक होती है मुरीद, एक होता है मुरीद, एक होती है इरादत। इरादत और मुरीद में बड़ा फ़र्क है। इरादत हर कहीं हासिल हो सकती है, लेकिन मुरीद होना हर एक के बस की बात नहीं है। तो वही इरादत व मुरीदियत की जंजीरों को तोड़ करके ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने चहीते लाडले ख्वाजा उसका हाथ में दबाया और कहा तो अब तुम चले जाओ। कहा ए मौला, मेरे पास दुनिया में कुछ नहीं था, मैं मोइनुद्दीन को तेरी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। आवाज़ आती है, ए उस्मान हारूनी, तुम्हारी ये नेमत गैर मुतरक़्क़बा मेरी बारगाह में मकबूल हो चुकी है, लेकिन अब इसकी ड्यूटी लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी। कुंदन से इसको नगीना आप शारे बना दिए हैं, अब इसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान की तरफ है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। इससे पहले एक चीज़ और मिलती है, ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हुए और ख्वाजा साहब को एक ख्वाब आया, उसमें आपको एक अनारे शीरी अता किया गया। अनारे शीरी अता करने के बाद जब हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए, पैदा हुआ कि हिंदुस्तान कभी गया नहीं, वहाँ की आबो हवा कैसी होगी, कैसे जाया जाएगा, कि हिंदुस्तान बताया जाए कहाँ है। तो तारीख़ में लिखा आता है कि अनारे शीरी के दानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान और अजमेर का नक्शा मुनक्कश करके उनकी आंखों के सामने जाहिर फरमा दिया था। ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान की जानिब रवाना हुए।
बिल्कुल अजीब सा मैदान था, सब कुछ था। यहाँ तबलीग की और अपनों को बनाया, अपने गले लगाया, तबलीग की। यहीं से तज़व्वुफ़ और सिलसिला क़ादरिया की नुशूद व नुमा होती है। लोग आते चले गए, तालीम देते चले गए। जो जितना करीब हुआ खुदा से, इतना ही उसके दिल में इरफानियत, नूरानियत, तजल्लियात की रोशनी होती रही। ये बुनियादी अव्वल है कि जो यहाँ से सिलसिला चिश्तिया और तसव्वुफ़ का दरवाज़ा और आगाज़ होता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जब आपने हाज़िरी दी तो वहीं से सुल्तान हिंद का खिताब मिला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुल्तान हिंद के नाम से पुकारा, खिताब अता किया। उसके बाद आपने जब अपना सफ़र शुरू किया तो हम देखते हैं कि पहला पड़ाव कहा गया था कि वहाँ हिंदुस्तान की सरहद पर एक शेर है लाहौर में, उसे जाकर मनाओ। और वहाँ काफ़ी दिन उन्होंने एक चिल्ला किया हज़रत दाता गंज बख्श के दरबार पर, शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। और उसके बाद फिर आप हिंदुस्तान में वारिद हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके एक मुरीद थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ से भी एक लंबा जो है आप दोनों का साथ रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बाद हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर जब हम आते हैं, उनके सिलसिले की बात करते हैं या उनके हालात को देखते हैं, तो उस दौरान हम फिर उस दूरी की तरफ आ रहे हैं मौलाना साहब, जिसका जिक्र हम शुरू से कर रहे हैं कि ग़ियासुद्दीन तुगलक का ज़माना है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की अपनी हैसियत है, जो काजी हैं उनकी अपनी हैसियत है, लेकिन एक मामूली से मसले पर एक मुनाजरा होता है। हम चाहेंगे कि वो तफसील आप बताएं ताकि ये वाज़ेह हो सके कि उस वक्त बादशाह वक्त, बुजुर्गान दीन और उनके दरमियान एक तीसरा तबका जो उलमा का था, वो अपना असर, अपना असर रसूख, अपना जो जिसको कहते हैं कि एक सिक्का जमा चुका था दरबार पे भी और अवाम पर भी। एक दस्तूर की ज़रूरत थी मुल्क को चलाने के लिए, और वो काजी हों, चाहे वो ख़तीब हों, बड़े बड़े जो हुकूमत के इदारे हो सकते हैं, वो दरबार से उनका गहरा रिश्ता था। और दरबार से जब रिश्ता हो जाता है तो फिर दरबार इलाही से वो रिश्ता कमज़ोर पड़ता है। तो उस मुनाजरे के बारे में बताइए। देखिए, समझने की चीज़ यह है कि कुरान मजीद से बाहर रहकर तो कोई मुसलमान नहीं चल सकता, चाहे वो औलिया हों या उलमा हो या बादशाह वक्त हो। अगर वो मुसलमान है तो उसे कुरान मजीद को मानना ही पड़ेगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानना पड़ेगा। लेकिन हम शुरू से देखते हैं सहाबा किराम में भी इख्तिलाफात थे। इख्तिलाफ गलत चीज़ नहीं है, टकराव गलत चीज़ है जी। उसी टकराव की बात कर रहे हैं। हाँ, सहाबा किराम में जो इख्तिलाफ था उसकी वजह से टकराव नहीं होता था। राय का इख्तिलाफ है लेकिन साथ में मिलना बैठना सब कुछ होता है। ये चीज़ सहाबा किराम में भी थी, उसके बाद उलमा व मशाइख में हुई, सूफिया किराम के और उलमा के दरमियान भी इख्तिलाफात हुए। वो जिस मुनाजरे का आपने जिक्र किया वो समा के सिलसिले में एक मुनाजरा था। बादशाह की मजलिस में वो उलमा जो समा को गलत कहते थे और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और बहुत से वो सूफिया किराम जो समा के कायल थे, उनके दरमियान गुफ्तगू हुई। जी, वो यहाँ ये वाज़ेह कर दीजिए मौलाना साहब कि वो समा जिसमें साज ना हो, जिसमें मज़ामीर ना हो। देखिए, समा जो है असल में कुछ कलाम मंजूम पढ़कर और जो सुनाया जाता है, असल में समा तो वो है, लेकिन वो दो तरह का होता है। उसमें तो एक तो होता है जो मज़ामीर, सारंगी, सारी चीज़ें उसके अंदर आलात होते हैं। उसके लिए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा चुके हैं कि मैं मज़ामीर को ख़त्म कर देने के लिए आया हूँ। मज़ामीर तो पसंद नहीं किए जाते, लेकिन समा के सिलसिले में इजाज़त होती है। ख़ुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी हज़रत हसन बिन साबित और दूसरे हजरात समा सुनाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब अबू तालिब के कुछ अशार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर सुनाए थे, और ये चीज़ गलत नहीं है। इस पर जब मुनाजरा हुआ तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस सिलसिले में एक हदीस पेश की। इधर से समा की हिमायत में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया खुद हैं और आपके साथ में कई उलमा हैं जो सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी तरफ वो उलमा हैं जो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं और वो सूफिया से ताल्लुक़ नहीं रखते। उन्होंने कहा कि कोई फ़िक़ही जुज़िया पेश कीजिए, इमाम हनीफा की कोई कौल पेश कीजिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने, जैसा हमने शुरू में कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, कुरान मजीद की आयत से आज़ाद कोई नहीं हो सकता। जहाँ हदीस मिल रही है, जहाँ कुरान मजीद की आयत मिल रही है, फिर किसी फ़क़ीह की कोई बात वहाँ नहीं सुनी जाएगी। उन लोगों ने मुतालबा किया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से कि आप इमाम हनीफा का कोई कौल पेश कीजिए। उन्होंने फरमाया कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश कर रहा हूँ और तुम मुझसे किसी इमाम का कौल मांग रहे हो। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि यहाँ हम इमाम का ही कौल सुनेंगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस मजलिस में
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اہمیت نہ دی جائے اور کسی امام کے قول کو مطالبہ کیا جائے، میں ایسی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کے انہوں نے مجلس سے برخاست کر دیے، ہٹ گئے اور اس میں شریک نہیں ہوئے۔ بالکل، موقع رہا تو انشاءاللہ مولانا صاحب آپ سے ضرور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا کلام نازل کیا قرآن پاک کی صورت میں، رسول پاک کی احادیث موجود ہیں، اور رسول پاک نے دنیا سے وصال کے وقت بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں خطبہ حجت الوداع میں صاف طور پہ کہا تھا کہ قرآن اور حدیث چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پھر فقہ وہ اپنی جڑیں کس طرح مضبوط کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس فقہ سے بھی چاہے وہ منطق ہو چاہے وہ دوسری چیزیں ہوں کس طرح سے ہماری جو تہذیب ہے متاثر ہوئی، ضرور جانیں گے۔ لیکن یہاں اپنے ناظرین کو لے چلتے ہیں نظام گیٹ کے پاس، یہ خواجہ صاحب کی درگاہ میں کے احاطے میں موجود ہے، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تب بھی زائرین کا جو ہے ایک خاص وہ جگہ ہوتی تھی جہاں وہ سب حاضر ہوتے تھے، اور عمرا اور بادشاہ وقت بھی وہاں پہنچا کرتے تھے۔ شاہ کا شادو علی کا دلارا، یہ دروازہ حیدرآباد کے نظام سر عثمان علی خان کے حکم سے ان کی درگاہ حاضری سے شروع ہو کر 1915 عیسوی میں تکمیل کو پہنچا۔ حیدرآباد کے نظام سر عثمان علی خان کے حکم سے سن 1912 میں شروع ہو کر سن 1915 میں تقسیم ہوئی۔ اس کی اونچائی لگ بھگ 70 فیٹ ہے اور چوڑائی 16 فیٹ ہے۔ نظام گیٹ تقریباً 70 فٹ اونچا ہے اور اس کی چوڑائی کل 16 فٹ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس تاریخی دروازے پر روزانہ 5 بار نوبت بجائی جاتی ہے۔ اس دروازے پر 5 بار روزانہ نوبت بجائی جاتی ہے۔ یہ دروازہ درگاہ کی شناخت ہے۔ شاہ کا شادو علی کا دلارا۔ تو ناظرین ابھی ہم نے جانا نظام گیٹ کے بارے میں، اور جیسا کہ آپ نے بھی سنا کہ یہ درگاہ کی خاص شناخت ہے۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ سالار بھائی پہلے تو آپ کا استقبال کرتے ہیں، روبینہ صاحبہ فون لائن پہ موجود رہی گا، آپ سے بھی بات کریں گے۔ جی سالار بھائی سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال ہے اور ایک خواب ہے، لیکن سوال پہلے پوچھ لیتا ہوں جی کہ جیسے اولیاء اکرام اپنے اپنے جگہوں پہ اپنی اپنی چھاپ چھوڑتی تھی، تو کئی جگہوں پہ اوریجنل ان کو دفنایا گیا اور کئی کئی جگہوں پہ ان کے آستانے رکھے گئے، تو کیا ہم آستانے کو بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی جہاں اصل ان کی مزاریں بنی ہوئی ہیں؟ اور دوسرا خواب تو خواب بولنا نہیں چاہیے ایسے موقع پر، لیکن بہت ضروری ہے باقی خواب یہ ہے جی جی بتائیے۔ میں نے خواب دیکھا ہے 30-35 لیڈیز ہے، وہ بھی غیر مسلم ہے، اور وہ مجھ سے کہتی ہے کہ قرآن پڑھ کے بتاؤ، اور قرآن کے جو حرف ہے اس کو ہمیں شناخت کر کے بتاؤ، اس لیے میں بہت بے چین ہوں، یہ مجھے ضروری جاننا ہے کہ ایسا کیوں خواب ہے میرا۔ ٹھیک ہے، خواب واقعی اہم ہے، تھوڑا سا انتظار سالار بھائی۔ روبینہ صاحبہ سوال بتائیے۔ ہلو جی بہن، وعلیکم السلام۔ مجھے نا آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میرا فرسٹ ٹائم کال لگا ہے۔ جی آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی آمین آمین۔ ہلو جی جی روبینہ بات جاری رکھیے، کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ میرے 3 سوال۔ پہلا تو یہ کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے، میرے ابو کے لیے ہم نے کال کیا تھا، میرے ابو کا نام قاسم ہے، وہ 10 سال سے گر گئے۔ ہاں ہلو جی جی، آپ کے والد ان کے بارے میں آپ نے بھی کیا کہا؟ ہاں میرے والد نا 10 سال سے میرے ابو گر گئے ٹول سے اور کھڑے نہیں ہو پاتے، تو مولانا صاحب نے بتایا کہ سورہ بقرہ پڑھوائے، وہ معلوم نہیں مسلسل پڑھنی ہے یا پھر 1-2 دن پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ ہے، ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم 4 بھائی بہن ہیں، تو میں سب سے بڑی ہوں اور میرے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور میرے تینوں بھائی بہن کے رشتے ہو جا رہے ہیں، اچھے سے ہو رہے، اور میرے رشتے میں پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے،
तो मेरे नाम की मतलब कि है कुछ क्या? मेरा नाम रुबीना है और मेरी एज ना 28 साल है। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करें। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, वक्फे की बात पर फिर आप सबका इस्तकबाल है। यहाँ अभी सालार भाई ने 2 सवाल पूछे। ख्वाब के ताल्लुक़ से मौलाना साहब आपके पास आ रहे हैं, उस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है? देखिए, कुरान मजीद और शरीयत के बारे में जानने का शौक़ किसी को भी हो सकता है, कोई मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो। तो ऐसा मालूम होता है कि इनके पास कुछ लोग ऐसे किसी वक्त में, ज़रूरी नहीं कि सारी औरतें ही हों और एक साथ इकट्ठी आएँ 25-30, किसी वक्त कोई भी आदमी अगर इनसे कुरान मजीद के बारे में पूछे तो आसान करके उनको समझा देना चाहिए। कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ के भी सुना देना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद पढ़ने का जो अंदाज़ है, उसके जो अल्फाज हैं, वो भी आदमी को सुनने को जी चाहता है। इंसान की फितरत जो है उस कलाम को सुनना चाहती है, इसलिए थोड़ा सा खुश इल्हानी के साथ पढ़ के भी सुना दें, उसका कुछ मतलब भी समझा। बहुत शुक्रिया। अब सालार भाई का जो पहला सवाल था कि कुछ आस्ताने हैं और कहीं मज़ार हैं, दोनों के बारे में क्या एक इंसान का तरीक़ा होना चाहिए या उनकी तक़द्दुस और हुर्मत कितनी ज़रूरी है? जहाँ आस्ताने या जो गुंबद वगैरह बने होते हैं, ये अक्सर व बेशतर वही जगहें हैं जहाँ उनका जिस्म पाक को कब्र बना करके रखा जाता है, उसी को कब्र बोलते हैं। और कब्र के बाद चहारदीवारी करके उसमें गुंबद वगैरह बना दिया जाता है, तो उसको आस्ताना बोलते हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ उनका जिस्म पाक बुज़ुर्ग का, वली का ना हो और वहाँ आस्ताना बना दिया हो, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बल्कि आस्ताना या कब्र शरीफ जहाँ रहती है वहीं है। कुछ बुज़ुर्गान दीन की बातें मिलती हैं कि पहले उनका जिस्म पाक था तो वहाँ मुंतकिल करके एक कब्र से दूसरी कब्र में मुंतकिल किया गया, ये मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जिस्म कहीं है और आस्ताना कहीं बना दिया गया हो। हाँ, वो चीज़ें जो इनके आदमी, वो एक ऐसा है कि सैयद सलार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब वो हिंदुस्तान में जंग करते हुए रामपुर मुरादाबाद होते हुए बहराइच तक पहुँचे तो आपका आधा जिस्म कहीं शहीद हो गया, सर कहीं था, टांग कहीं थी। तो अलग अलग उन लोगों के चाहने वालों ने कुछ है, लेकिन मुकम्मल जो शहादत से सरफराजियत अल्लाह ने अता फरमाई, वो शहर बहराइच में जो आज भी उनका मज़ार मुक़द्दस मरजाए खलाइक बना हुआ है और लोग जाते हैं। तो ऐसे बुजुर्गों के लिए है, जब वो जंगों में शहीद हुए तो हाथ कहीं हुआ तो लोगों ने मिला तो तबर्रुक के तौर पर वहाँ। लेकिन ये बहुत कम चीज़ें ऐसी में, अक्सर वही है कि जहाँ जिस्म है वहीं मज़ार है और जहाँ मज़ार है वहीं गुंबद। जी, बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब आपसे मुखातिब है, ज़ेबा लाइन पे रहिएगा। शाहिद भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा ये सवाल है कि जो कुरान शरीफ पढ़ के बख्शा जाता है मरहूमों के नाम से, तो ये कितना मतलब सही है, मतलब कैसा है, इनके बारे में बात पूछना है। और दूसरा सवाल है कि ये मुरीदी जैसे बनी जाती है, ये इसमें मतलब बताइए सही है या कैसा है, मतलब मुरीद बनना ये कैसा है? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी ज़ेबा, अब आपकी बारी है, फरमाइए सवाल क्या है। ज़ेबा, हमें सुन पा रही हैं? हेलो, जी जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मौलाना साहब से मालूम करना था कि फजर की नमाज के बाद या अल्लाह हो या रज़ाक हो या रहमान हो, तो एक तस्वीर पढ़ना है। ठीक है, इसका सवाल तो हम जल्दी से ले लेते हैं इख्तिसार के साथ। जी, देखिए, तरतीब वो होनी चाहिए, या अल्लाह हो या रहमान हो या रज़ाक हो, इसी तरतीब से पढ़िए। और फजर की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद उसी तरह बैठे हुए पढ़िए, कम से कम 100 मरतबा। और काम बिल्कुल नहीं चल रहा है तो शुरू में 313 मरतबा पढ़िए। कुछ दिन गुजरने के बाद जब काम चल पड़े, उसके बाद चाहें तो कम कर सकते हैं। जी, पीरी मुरीदी के बारे में भाई ने जो सवाल किया, इसके बारे में इख्तिसार के साथ बता दें मौलाना। देखिए, पीरी मुरीदी का मतलब यह होता है कि कोई ऐसा बंदा अल्लाह का, जिसको किसी अल्लाह के वली ने इजाज़त और खिलाफत दी है, उसके हाथ में हाथ देकर, औरतें हाथ में हाथ नहीं देती हैं, वो किसी कपड़े के ज़रिए मुरीद होती हैं, लेकिन मर्द एक दूसरे के हाथ पकड़ के यूँ मुरीद करते हैं। वो मुरीद होना एक तरह से अपने आप को अल्लाह के हवाले करना, अल्लाह के एक बंदे के वास्ते से। हम आप अपने आप को आपके हवाले कर रहे हैं, यानी अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। जो कुछ अब आप कहेंगे वो हम करेंगे, और जिन चीज़ों से आप बचने को कहेंगे वो बचेंगे। और उसमें तौबा भी की जाती है, कुछ अहद पैमान किए जाते हैं। तो ये एक अच्छा सिलसिला है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक ये चीज़ चली आ रही है। और एक अहम चीज़ है,
मुरीद होना अच्छा है। जी, इसाले सवाब के लिए जब भाई ने तरीक़ा दरियाफ़्त किया कि ये कितना सही है या इसकी रिवायत कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है? देखिए जनाब अल्लाह कुरान पाक और अहादीस में इसकी वाज़ह नस्से सरीहियात से साबित है कि, और ये भी हदीस शरीफ है कि कुरान शरीफ पढ़कर एक लफ्ज़ पढ़ने के एवज़ 10 नेकियां अल्लाह ताला इनायत फरमाता है। कलाम अल्लाह का, नेकियां देना अल्लाह का काम है, किसी आम इंसान का नहीं है। जितने औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, असफियात किया, जितनी भी जमातें हैं, सबको फजलो करम की बारिश में शराबोर करने का ज़िम्मा करम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के दस्ते रहमत और कुदरत में है। अगर आप कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ो, 2 आयतें पढ़ो, या पूरा कुरान पढ़ो, या चंद सूरतें पढ़ो, या जितना कोई पढ़ा नहीं है सिर्फ उसको कलमा ही याद है, अगर वो अपने मरहुमीन के लिए मोहब्बत के साथ पढ़ के और ये दुआ करे कि अल्लाह जो मैंने तेरा कलाम पढ़ा है इसके एवज़ तू मेरी माँ की, मेरे बाप की, मेरे दादा की, परदादा की, नानी की रूह को इसका सवाब पहुंचा दे और उन्होंने करम अता फरमा सकूं, तो इंशाअल्लाह बिल यकीन ये जायज़ है, अच्छा है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। अगर वो गलत कहता है तो वो कुरान के हुक्म का मुनकिर है। बहुत शुक्रिया। सैयद उस्मान साहब फरमाइए, सवाल क्या है आपका? हेलो जी उस्मान भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मिसवाक करने का तरीका पूछना चाह रहा हूँ। मिसवाक करने का? जी हाँ, मिसवाक करने का तरीका पूछना चाह रहा हूँ जी। और दुआ ऐसी करना चाह रहा हूँ जो अल्लाह ताला कबूल करे, कुछ तरीका बताइए। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। शहनाज साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मेरा छोटा भाई है, वो बहुत बीमार है अभी। हाँ तो उसको इलाज करवाया तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो टेंशन रख रहा है, इसलिए उसके मगज पे कुछ असर हुआ है। और किसी दरगाह पे या कहीं पे भी लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि इससे कुछ काला। ठीक है बहन, आपका सवाल हम तक पहुंचा। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। रुबीना आपका सवाल ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और अगर हो सके तो कागज़ कलम अपने पास ज़रूर रखिएगा। सूरह बकरा के बारे में मौलाना साहब आप बताते हैं। एक सवाल तो ये है, दूसरा इनकी शादी से मुतालिक, जैसे छोटे भाई बहनों के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन इनका रिश्ता नहीं आ रहा। देखिए, सूरह बकरा पढ़ने के लिए अच्छा ये है कि हफ्ते में 3 मरतबा पढ़ें फिर रोक दें। वजह उसकी ये है कि एक तो ख़वातीन ख़ास तौर पर जो जवान औरतें हैं वो मुसलसल 40 दिन नहीं पढ़ पाती हैं, इसलिए भी रोकना होता है। दूसरे ये कि 3 दिन पढ़ा, उसके असरात इंशाअल्लाह हासिल होंगे, फिर अगले हफ्ते में 3 दिन पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए। और जहाँ शादी की बात है, कभी कभी कई इस तरह की रुकावटें होती हैं, इस मौजू पर एक दफ़ा तफसील से हम बयान भी कर चुके हैं। तो सूरह बकरा जो आप पढ़ेंगी वो भी इन असरात को काटने में मुफीद होगी। रिश्ते में जो रुकावटें होती हैं, मुख्तलिफ असरात होते हैं, कुछ बोला हुआ है वो हम पूरा नहीं कर सकें, उसकी पकड़ होती है, किसी गुनाह की पकड़ भी होती है, कोई बड़ा बोल हमारी ज़ुबान से निकल गया होता है, उसकी पकड़ होती है। 12 नमाज तौबा बार बार पढ़िए और बद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा 93 नंबर की सूरत है कुरान मजीद की। इशा की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा वो पढ़कर दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपका और आपके भाइयों का सबका अच्छा रिश्ता है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। याकूब भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे एक सवाल करना है मैं मौलाना साहब से, जैसे कि बातिनी इबादत और ज़ाहिरी इबादत, इन दोनों इबादतों में क्या फ़र्क है? जो कि ज़ाहिरी इबादत तो सबको पता है, बातिनी इबादत में क्या करना पड़ता है, कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा जानना था। अच्छा सवाल है मौलाना साहब, ये सवाल आपकी तरफ आएगा लेकिन उनसे पहले नूर इलाही साहिबा हैं, उनका सवाल भी ले रहे। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एक तो दुआ के लिए दरख्वास्त करनी थी। मेरे हस्बैंड ना आर्मी में है जी, तो उनके रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है वो आधा तो मिल चुका। हाँ हाँ। और आधा भी बाकी है। थोड़ा सा जरूरत मतलब ज्यादा थी, इसलिए थोड़ा मौलाना साहब से दुआ की दरख्वास्त है। जी, और मैंने ये पूछना था, बादल देखने कैसे होते हैं? जी ठीक है। मैंने बादल देखे हैं, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, बस थोड़ा हल्का सा ये ध्यान है कि भाई बादल देखे। मैंने ये पूछना था कि बादल देखना थोड़ा सा इंतजार। याकूब भाई का सवाल, ज़ाहिरी इबादत बातिनी इबादत दोनों के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मोहतरम, ज़ाहिरी इबादत यही है, रोज़ा है, नमाज है, हज है, ज़कात है।
ان کو پابندی کے ساتھ خشیت الہی خوف خدا کے بعد غرق ہو کر کے ادا کرو. جب آپ کا ظاہر صاف ستھرا مائے احکام شرع کے ساتھ ستھرا ہو جائے گا تو دل خود بخود آپ کا آئینہ بن جائے گا, نگینہ بن جائے گا. اور جو چیزیں غیر شرع ہیں, جھوٹ ہے, فریب ہے, مکاری ہے, دغا ہے, زنا ہے, چوری ہے, اور بھی جو بری چیز ہے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھ کر خوف خدا عشق رسول بسا لوگے. جو آپ کا ظاہر ہے وہی آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے زبان پر ہے وہی دل میں ہے. جب دل زبان یکجاں ہو جائے گی تو یہ ظاہر و باطن ایک جگہ ہو جائے گا. پھر جو سجدہ کرو گے بالیقین وہ قبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی نعمت و اکرام سے آپ کو مالا مال فرما دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہن کا جو سوال ہے اختصار کے ساتھ مولانا صاحب, اول تو یہ کہ پیسے کے لیے ان کو اس وقت سخت ضرورت ہے, دعا کر دیں. اور دوسرے انہوں نے خواب میں بادل دیکھا ہے, یہ کیسا ہے؟ بادل دیکھنا اچھا ہے, رحمت کی علامت ہے انشاءاللہ. اور پیسہ بھی ہم بھی دعا کریں گے. یہ بھی نماز حاجت کبھی کبھی پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں کہ پروردگار ہمارا پیسہ آسانی سے مل جائے اور پھر خیر و برکت ہو اس پیسے میں. جی, مسواک کا صحیح طریقہ کیا ہے مولانا صاحب؟ مسواک کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ جو پیلو کی لکڑی ہے یا نیم کی لکڑی ہے, ایک بالشت آپ اس کو ناپیں, پھر آپ اس کو صاف ستھرا کر کے دھو لیں, پھر آپ اس کو دانتوں سے جمیں, سیدھے ہاتھ سے لے کے سیدھی طرف دانت پہ یا مسوڑے پہ جو ہے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اس کو آپ شروع کریں. اور جتنی دیر رگڑنا چاہیں جب تک دانت آپ کے صاف نہ ہو آپ صاف کریے. ہر کام جو بھی جائز ہے, ہر جائز کام کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے, اور برکتیں ہوتی ہیں. بالکل, اور بالکل. حدیث شریف, مسواک تو سنت رسول ہے, اور سنت رسول کرنے میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں سوا اچھائی کے علاوہ. بالکل مولانا صاحب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر گراں نہ گزرتا تو ہر نماز سے پہلے انہیں مسواک کا حکم دیتا. تو یہاں دو سوال ہمارے پاس کل تک کے لیے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ, چونکہ وقت ختم ہوا جاتا ہے. دعا کی قبولیت کا طریقہ, اور ایک بہن نے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں جو سوال کیا ہے کہ کچھ اثرات ہیں یا کوئی جادو ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ کل مولانا صاحب ضرور بتائیں گے, تفصیل سے بتائیں گے. آپ کو دیکھنا ہوگا ہمارا کل کا پروگرام. تو یہاں چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مولانا صاحبان کا حد درجہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی گفتگو کو اپنے رہنمائی کے ذریعے ناظرین کے ذہنوں کو منور کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے بہت ساری باتیں جانی. کل انشاءاللہ راہ سلوک کے جو مختلف مدارج ہیں ان کے بارے میں جانیں گے. شریعت کیا ہے, طریقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, معرفت کیا ہے, بہت ساری باتیں ہوں گی. تو انشاءاللہ کل بھی ہمارا اسی طرح ساتھ دیجیے گا. آج آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, لیکن چلتے چلتے یہ خوبصورت سی قوالی آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیں راہ نجات. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ख्वाजा मोइन